Arise in your seat for the respected CMs already here. Perhaps we say निवेदन करना चाहूँगा अपने government sir has realized this and has taken this wonderful initiative. Therefore, sir, I thank you a lot. I also thank the department officials for organizing this beautiful event. 9 a.m. was the gathering of the participants and registration. 9 a.m. Sharp. As you can see, the chief guests and dignitaries have arrived. We will have the highlight of the program by Secretary Tourism. 9:25 we will have address by the Honorable Minister of the event. So ladies and gentlemen, we have, as I have already said earlier, a wonderful array of programs highlighted for you. मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप बैठे यहाँ पे हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे. Honorable Minister Sir felicitating the Honorable Chief Minister Sir. Honorable Minister Sir felicitating the Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh. And of course, we invite our Honorable Deputy Chief Minister. Comprising from Tawang, Bomdila, West Siang, West Kameng, East Kameng. And they will be going to eastern part of Arunachal. The eastern part of Arunachal will be visiting the western part of Arunachal, and the central Arunachal will be visiting Mechuka, Alo and Pasighat. We will continue this endeavor for another 3 groups sometime at the end of April and beginning of May, and they would be the same team composition, the Pangsu Valley composition, the Subansari Valley and the Jamse Gatsal group from Lumla. We start this as an initiative of the department, and we hope that this initiative can be carried forward by all our stakeholders so that we have so much to offer. Let us see our own state first, and then we welcome our domestic tourism. We need to provide very high value tourism to the visitors who will be visiting Arunachal Pradesh in the times to come. Thank you for participating today. Thank you, honorable dignitaries, for blessing the department's initiative and endeavor. And we, as being part of Team Arunachal, will definitely ensure that we will be able to give the best of our ability and services to the state as well as the country. Thank you. ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आप सबको पता है 2020 मार्च से लेके आज तक हमको एक ऐसे बीमार से और ऐसे होल पैंडेमिक से जकड़ कर रखा है, और सबसे प्रॉब्लम जो है, सबसे जो कोरोना जो है हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट को, सबसे टूरिज्म क्षेत्र में, इंडस्ट्री में सबसे माने खराब इफेक्ट पड़ा है कि उसको बाकी डिपार्टमेंट सेक्टर में जितना भी है उससे ज़्यादा हमको झेलना पड़ा है कि टूरिज्म सेक्टर में. तो टूरिज्म सेक्टर में जब इंडस्ट्री को जब ऐसे इफेक्ट पड़ा है कि हमारा जब ऐसे इफेक्ट पड़ा है तो टूरिज्म का आना जाना, टूरिस्ट का आना जाना स्टेट में बंद हो गया, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो. जब ऐसे सिचुएशन जब आ गया, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाना प्रॉब्लम हो गया और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना प्रॉब्लम हो गया. उसी बीच हमारा माननीय जो विजनरी एक यंग एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर ने एक आइडिया कॉन्सेप्ट किया कि क्यों ना हमारा डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूरिस्ट का प्रॉब्लम के बीच हम अपना को एक आत्मनिर्भर का तरीका ढूंढ के अपना स्टेट का अपना डोमेस्टिक टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आइडिया एक कॉन्सेप्ट किया है कि हमारा चीफ मिनिस्टर द्वारा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा देखो अपना प्रदेश अपना टूरिज्म एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है और टूरिस्ट को भी स्टार्ट करने के लिए स्टेट में दिया गया था. तो शुरुआत जो हम लोग का प्लान था टूरिज्म डिपार्टमेंट का, हम लोग अक्टूबर से शुरू करेगा. अक्टूबर में अरुणाचल में क्या होता है कि बारिश खत्म नहीं होता है, तो कुछ टूरिज्म का पूरा जो एक्टिविटी का एक रुकावट आ जाता है कि बीच बीच में, इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम को आगे ले जाके आज मार्च को स्टार्ट करना पड़ा है. तो उसी का अंतर्गत तो हम लोग देखते हुए हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म को एक्टिविटी का अरुणाचल में आस्ते आस्ते लाना शुरू कर दिया. जैसे सियांग रस हो गया, आप और भी एक्टिविटी जो है, और आने वाला में भी हमारा अप्रैल का 6 तारीख को भी हमारा अरुणाचल ड्राइव का एक टूरिज्म का एक्टिविटी होगा जामसाई में.
और उसी बीच आउटलुक ग्रुप का नवसाई में ये क्या हमारा वर्कशॉप भी हुआ है। उसी में हमारा टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और उसका मद्देनजर रखते हुए अब लोकल टूरिज्म को हम लोग टूरिस्ट एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट देते हुए आगे बढ़ाने के लिए आज ये पार्टिसिपेट जितना भी आप ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल जोन से जो पार्टिसिपेंट आज यहाँ आया है, इसी का मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अरुणाचल को टूरिज्म हम हमेशा बोलता है कि टूरिज्म और टूरिस्ट क्या है, लेकिन अरुणाचल ऐसे है कि पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन एरिया के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा एरिया होता है। तो हमारे यहाँ एक ऐसे प्रॉब्लम है कि हमारा मेजर 26 ट्राइब है और सब ट्राइब जो मोर देन 100 ट्राइब्स है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ऐसे है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए, जैसे कि हमारा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में अब जो ईटानगर में जन्म लिया हुआ यहाँ का लोकल जो है मेंगियो कहाँ है उसको पता नहीं है। जैसे हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, दापरी जो वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को पता नहीं है तो कि तकसन कहाँ है। और यहाँ ऐसे है कि अब ईटानगर वाला तवांग बोल के पिक्चर बहुत लेता होगा, लेकिन तवांग देखा नहीं है। और मेचुका वाला क्या लोंगडिंग कहाँ है बोलने से, इंडिया बॉम्बे कहाँ है बोलने से पता होता है, कि लोंगडिंग कहाँ है बोलने से पता नहीं होता है। तो अरुणाचल में टूरिज्म के एक्टिविटी को आगे ले जाना है तो हम खुद को जानना सबसे जरूरी होता है, हम क्या है। और एक दूसरा को इतना ट्राइब के बीच में से हम रहन सहन, खाने पीने का आदत और जैसे ट्रेडिशन कल्चर मेंटेन करता है उसको जानना जरूरी है। तो आज आपका ट्रुप जो है 60 के मेंबर्स का एक ट्रुप 4 ग्रुप में बताया गया है कि आपको इसलिए जाने दे रहा है कि आप उसी जगह जाके आप सीखे और पहले अपना अरुणाचल का भाई बहन का या माँ पिताजी क्या करता है, खाने पीने का क्या है, तौर तरीका क्या है, कैसे रहता है, पहनता कैसे है, बोलता कैसे, तो उसको एक दूसरे को जानना जरूरी है। जैसे हम खुद भी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट अभी तक नहीं गया, हमने अभी तक अंजो नहीं गया, अनिनी नहीं गया और अपर सियांग नहीं गया, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट नहीं गया। इसलिए आपको अरुणाचल को एज अरुणाचल इंटीग्रिटी वाले अरुणाचल को आगे बढ़ाना है और अरुणाचल को एक जानना है। अब अरुणाचल खुद को बोलने के लिए एक अरुणाचल के बारे में जानना जरूरी है, कल्चर के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए आज का जो आप फर्स्ट ट्रुप में जा रहा है और सेकेंड ट्रुप में अप्रैल में फिर यहाँ से चला जाएगा, तो आपका एक मकसद होना है कि उसी जगह में क्या होता है और उसी जगह का रहन सहन कैसे है, बिहेवियर कैसे है। और टूरिज्म का आज का जो आप एक्टिविटी जो ट्रुप जा रहा है, हमारा टूरिज्म का और गवर्नमेंट का एक मकसद है कि आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो, आपका सोच चेंज हो, ताकि अरुणाचल का शांति हो। अरुणाचल का आगे बढ़ाने के लिए हम सिर्फ सरकार चलने से नहीं होगा, आप सबका साथ देना जरूरी है और टूरिज्म डिपार्टमेंट होने से नहीं होगा, आप सबका साथ देना जरूरी है। उसके बाद आप आने वाला जो ट्रुप आज फर्स्ट ट्रुप जो जा रहा है, आपको सिविल को बेस्ट ऑफ लक और अच्छा समय लेते हुए जहां भी जाएगा वहां से अच्छा खबर लेके अपना घर में आके और अपना जगह में आके बता दीजिए कि आपने चल के उसी पार्ट में ऐसे है, ये पार्ट में ऐसे है। और जहां भी जाएगा वहां से भी आप कुछ सिखा के आइए और वहां से भी कुछ आइडिया लेके आए। इसी का साथ मैं मेरा बात को यही समाप्त करता हूँ। युवा आज भ्रमण करने के लिए जो हमारा सभी समाज के जो लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अगर इस तरह से आँख में वहाँ तक ले जाऊँ तो एक सुंदर अरुणाचल प्रदेश का दृश्य दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इज सो कलरफुल, अच्छा उस कलरफुल को इसीलिए देखता है हमारा वेशभूषा कितना सुंदर है। आप दाएं से लेके बायां तक ले जाओ, कितना सुंदर देखता है। मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, लोहित डिस्ट्रिक्ट से जो मिसमी अटायर है, देखो कितना सुंदर है। तो यही अरुणाचल प्रदेश है। मुझे मालूम नहीं था, कल 8-8:30 बजे को मुझे इन्विटेशन मिला कि ये देखो अपना प्रदेश का यह प्रोग्राम आयोजन हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी जाऊं, आप लोगों को देखूं यहाँ आके। जैसे कि हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म पटेल जी ने कहा है कि 2021 इज ईयर ऑफ देखो अपना देश।
क्यों कहा है उन्होंने कहा है कि कोविड-19 में हमारा देश का इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट हुआ है, समाज को बहुत इफेक्ट हुआ है। तो टूरिज्म नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं चल रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो अपना प्रदेश को एक्सप्लोर करना होगा, अपना भारतवर्ष को एक्सप्लोर करना होगा। तो इसलिए देखो अपना देश एक प्रोग्राम बनाया। हमारा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप विदेश जाओ, विदेश देखो, लेकिन ये भी तय करो कि अपना देश के कम से कम 15 प्रदेश को जाओ, देखो अपना। तो उसी मोटो को लेके हमारा मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम भी अरुणाचल प्रदेश में देखो अपना प्रदेश का एक हम योजना बनाएगा। उसमें हमारा जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट को देखने मिले, एक दूसरा कल्चर से मिलाप जुलाप करें और कल्चरल एक्सचेंज भी हो। जैसे कि हमारा नकप नालो जी ने बोला है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत से लोग हैं कि अरुणाचल प्रदेश को ही अच्छा से नहीं देखा है। हाल ही में नामसाई में महिला मोर्चा का एक एग्जीक्यूटिव मीट हुआ था। वहाँ चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग में बोला, आप लोग कितने लोगों ने नामसाई देखा है, हाथ उठाओ। तो शायद 25% ने हाथ उठाया है, बाकी 75% का हाथ नीचे था, यानी कि देखा ही नहीं नामसाई को। और नामसाई एकदम नज़दीक है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, लेकिन नामसाई देखा नहीं। 95 लोगों ने हाथ उठाया, 95%। तो देखिए, तो कितना लोगों ने नहीं देखा। हालांकि हमारा प्रॉब्लम एक है कि एकोमोडेशन का, लोग जाने से रहने के लिए सुविधा नहीं है। अभी तो वो भी सुविधा बहुत हो गया है, जहाँ जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है। अब देखिए, कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखा दिया हमको। लोग बाहर जा नहीं सकता है, लोग दुनिया जा नहीं सकता है, तो कहाँ जाएगा? अपना देश जाएगा, अपना पड़ोसी एरिया जाएगा। तो पूरा का पूरा तवांग जाता है, पासीघाट जाता है, जीरो जाता है, मेचुका जाता है, नामसाई आता है, पासीघाट आता है। नामसाई में तो इतना ज़्यादा फुटफॉल हो गया, वो गाड़ी रखने का जगह नहीं है गोल्डन पगोड़ा में। इस तरह का हालत हो गया, तो उसका फायदा लेना होगा। अभी हम क्या है, इसीलिए हमारा यहाँ हमारा अपना जो अनएम्प्लॉयड लड़का है उनको प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना को हम डबल कर दिया है। उसका जो फंडिंग है 10 करोड़ था, अभी 20 करोड़ कर दिया है, ताकि हमारा लड़का लोग, हमारा जितना भी अनएम्प्लॉयड लड़का है, उसे लाभ उठा सके। लोन लेके चाहे रेस्टोरेंट करें, चाहे होटल करें, तो इससे और टूरिज्म का उन्नति हो और टूरिज्म का प्रोग्रेस हो। हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहता है कि हमारा जो 75 ईयर एनिवर्सरी, जो भारतवर्ष का 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी अभी कुछ ही हफ्ता बाकी है, उसी सप्ताह बाकी है। इसलिए अभी से क्या है, आज़ादी का महोत्सव, इसका शुरुआत हो गया है और उसका वर्चुअल जो उसका महोत्सव जो है वर्चुअली शुरुआत हो गया है। आप फेसबुक में देखेगा कि इसका ब्लॉग में जाएगा, इसका वेबिनार में जाएगा, आप देखेगा कि हर प्रदेश का जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को दिखाया है। कल परसों मैंने खोल के देखा तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का भी देखो, उन्होंने जो ये जो एंकरिंग है उन्होंने बता रहा है, अभी आप अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य, फोक कल्चर देखो। तो अरुणाचल प्रदेश का कितना सुंदर फोक कल्चर दिखाया। तो एक हमारा जो आज़ादी का महोत्सव ये भी चल रहा है, और जब हमारा 75 ईयर्स पूरा हो जाएगा इंडियन आज़ादी का, तो बहुत जोरदार से ये महोत्सव चलेगा। तो इसीलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी एक जो ये देखो अपना प्रदेश का जो आयोजन किया है, ये बहुत अच्छा है।
आप लोग देखो, मैं तो कहता हूँ कि हमारा प्रदेश का बहुत लोग है, इंटीरियर जो 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 एरिया के जो लोग हैं, जिसको हिंदी भी बोलने नहीं आता है, असमिया बोलने से भी नहीं आता है, सिर्फ अपना ही भाषा जानता है, उसको भी एक्सप्लोर करना होगा, उसको भी दुनिया देखने के लिए मौका देना होगा, उसको भी अरुणाचल प्रदेश देखने के लिए मौका देना होगा। इस हालत में है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रोग्राम से ये हम कर सकता है कि जहाँ जहाँ लोग जहाँ नहीं पहुँचा है, जहाँ जो लोग बाहर कभी गया ही नहीं है, उनको भी बाहर लिया के हमारा कल्चर, एक कल्चरल एक्सचेंज करो, तब हमको जानकारी हो कि भाईचारा का भी, एक ब्रदरहुड का भी एक कल्चर। पर्यटन मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे टूरिज्म टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एडवेंचर टूरिज्म कितना आ चुका है हमारा यहाँ में, टूरिस्ट बहुत आता है अभी अरुणाचल प्रदेश में, उसका एडवांटेज लेना होगा। आज का दिन में हमको कैसे लेना होगा? अतिथि देवो भव। एक तो हमारा सोच में बदली करना होगा, हमारा स्वभाव में। जैसे होटल में जाता है हम, तो खाना ऑर्डर देता है तो 1 घंटा तक खाना नहीं आएगा तो कैसे होगा? लेकिन खाना अगर ठीक खाने में इतना टेस्ट नहीं होगा भी तो तुरंत खाना आ जाएगा, तो वो बहुत है हमारा लिए। तो इसीलिए सर्विस बहुत अच्छा होना होगा, हमारा वेलकमिंग जो एटीट्यूड है बहुत अच्छा होना होगा। तो इस तरह से हमारा अरुणाचल टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं जितना भी आज यहाँ जो पार्टिसिपेंट आया है, आपका शुरुआत होगा, मैं प्रोग्राम देखा हूँ डे 1 से लेके अब कहाँ कहाँ जाएगा। देखो हमारा तवांग में जो है 400 साल का पुराना जो मंदिर है, जो तवांग गोम्पा है, शायद किसी को मालूम नहीं होगा। तवांग गोम्पा 400 साल है, उसका इतिहास 400। उसका नज़दीक में 6 दलाई लामा का जन्म स्थान भी है, वो सब भी जानना होगा, वो सब भी देखना होगा। जैसे मेचुका में है जो मंदिर है, वो भी जो निंगमापा का जो बुद्धिस्ट मंदिर है, वो भी 400 साल पुराना है, उसको भी देखना होगा। उसका जो जो नेचुरल जो ब्यूटी है, क्रिस्टाइन ब्यूटी है, नेचर को भी देखना है, हमारा मंदिर को भी देखना है, वहाँ का कल्चर को भी देखना है। आप यहाँ जाएगा तो मालिनी थान देखने को मिलेगा, थोड़ा आगे जाएगा तो आप भीष्मक नगर देखने को मिलेगा, थोड़ा आगे जाएगा तो आप परशुराम कुंड देखने को मिलेगा, उसका दौर आगे जाएगा तो नामदफा टाइगर रिजर्व मिलेगा। तो कितना सुंदर है। उसका थोड़ा और पूर्व में जाएगा तो आपका स्टील वेल रोड जो 500 पास है, उसको देखा है, स्टील वेल जो रोड है। तो इस तरह का हमारा ऐतिहासिक जो जगह है, उसको एक्सप्लोर करना होगा, उसको देखना होगा। बहुत लोग नहीं जानता है, उसको जानकारी हासिल करना है, एक दूसरा का कल्चर कैसा है ये जानकारी हासिल करना है। तो मैं तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। टूरिज्म भी मिलेगा और आप लोगों को सस्टेन भी हो पाएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत सारा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं जिसके पास कैश का प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत है अरुणाचल में, लेकिन उन लोगों का इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करना है थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा पिछड़ा हुआ है लोग। अभी का जो ट्रेंड है, सब लोग कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, सब लोग कॉन्ट्रैक्टर ही बन के बैठा हुआ है। मगर जो हमारा द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री इतना अच्छा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो स्कोप है बहुत बढ़िया है, उस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप लोग आइडेंटिफाई कीजिएगा और धीरे धीरे टूरिज्म सेक्टर्स में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने ही लोग कर रहे हैं। जैसे तवांग साइड में आप सबको पता है कि होम स्टेज और अच्छा होटल्स में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहा है। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी अभी काफ़ी होटल्स होम स्टेज आ गया। यहाँ ईटानगर नाहरलगुन में बहुत लोग अभी इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। जीरो जैसे जगह में अभी बहुत सारा लोग इन्वेस्ट कर रहा है। नामसाई साइड में हो गया, पासीघाट, इसके बाद मेचुको, आनिंगी, अंजाव और ईस्टर्न साइड में भी। तो धीरे धीरे अपने लोग टूरिज्म सेक्टर में हम लोग खुद को ही इन्वेस्टमेंट करना होगा और ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों का बेकार नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारा रिटर्न्स जो है, बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। अभी जीरो का अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी याद आया कि वहाँ पे एक अभी मूवी भी शूटिंग हो रहा है। आप सबको पता है कि टूरिज्म क्षेत्र में हम लोगों का पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1997 में तवांग इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि कोयला का मूवी वहाँ शूट हुआ था, और शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित का। तो उसमें बहुत छोटा सा पोर्शन तवांग में शूट हुआ, लेकिन अभी तब से लेके अभी तक इतना टूरिस्ट आता है वहाँ पे। तो इस बार जो जीरो में जो शूट हो रहा है, वहाँ का जो डायरेक्टर है अमर कौशिक,
वो अपना अरुणाचल में ही पढ़ा लिखा एक डायरेक्टर है। तो उनको मैंने इनिशियली मैंने बुला के कहा कि अरुणाचल में जब शूटिंग हो रहा है तो अरुणाचल का नाम भी आना है फिल्म में। जीरो का नीचे उतरने में टूरिज्म डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स और खास करके इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हमारे पूरे प्रदेश से आए हुए हमारा होम स्टे के ओनर्स लोग हो गया। इसके बाद अपना मैडम ने बताया और अपना ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म ने भी बताया, इस बार जो पिछले साल कोविड पेंडेमिक से चलते देश का इकोनॉमी और पूरा दुनिया का इकोनॉमी और अपना राज्य का इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, काफ़ी झटका हुआ है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रैक्टिकली खास करके टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे बड़ा इन्वाइट करने के लिए देखो अपना देश कार्यक्रम हम लोगों को कंडक्ट करवाना चाहिए। तो उसी लाइन में मैंने सोचा कि अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हम सब जानते हैं इस पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है और इसका जैसे हमारा टूरिज्म मिनिस्टर ने बहुत डिटेली बताया कि इतना बड़ा है कि हम लोग बीइंग एन अरुणाचली हम लोग सब चॉइस के बारे में और सब जगह हम लोग अभी तक पहुंचा नहीं है। डीसी साहब ने भी इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया कि रिसेंटली हम लोगों का एक पार्टी का एक्टिविटी एक मीटिंग वहाँ पे नामसाई में हुआ। तो मैंने कहा कि कितने लोग नामसाई फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो जो फर्स्ट टाइम आ रहा है मैं हाथ उठाने के लिए जो कहा तो 95% सभी लोग ने हाथ उठाया एंड इट वाज शॉकिंग टू मी। तो वैसे भी मैं जब भी इंटरेक्शन करता हूँ सभी लोगों के साथ में मैं हमेशा पूछता हूँ कि आप अरुणाचल में कहाँ कहाँ पहुँचा, और खास करके मैं जब अपना विधायक या ऑनरेबल मिनिस्टर्स के साथ में भी इंटरेक्शन करता हूँ मैं उनको भी पूछता हूँ कि आप लोग अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पहुँचा हुआ है। तो बहुत कम आउट ऑफ 100% अगर देखा जाए तो केवल सिर्फ 5% लोग होता है कि लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में टूर किया वाला, बाकी 95% कुछ डिस्ट्रिक्ट हमेशा छूटा हुआ ही रहता है। जैसे टूरिज्म मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ पे एक्नोलेज किया कि वो दिबांग साइड का और कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो अभी तक पहुँच नहीं पाया। तो उस प्रकार से हमारा जो टूरिज्म का जो स्ट्रेंथ है हमेशा मैं, क्योंकि उससे पहले मैं टूरिज्म जब मिनिस्टर था तो आई वॉज लुकिंग आफ्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट एज वेल। तो जो हमारा पोटेंशियल्स है टूरिज्म में, बाकी राज्य में ऐसे पोटेंशियल्स किसी भी राज्य में नहीं है पूरे इस देश में। तो टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसा इसमें हम लोग अगर अच्छा से ध्यान दे के उसको अगर अच्छा से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे टूरिज्म सेक्टर में तो अपना प्रदेश बहुत ही सुंदर है। और आने वाला जो दिनों में हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा जो यंग जनरेशन जो लोग टूरिज्म में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम लोग बहुत अच्छे तरह से हम लोग कर पाएगा। तो ये कार्यक्रम जो है आप सबको पता है कि 2 बैचेस में बांटा गया है इस साल का जो इवेंट है। और फर्स्ट फेज में होगा आपका 3 बैच का शुरुआत होगा, 10 दिन का प्रोग्राम होगा, जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल सेक्टर। तो फेज 2 जो है अभी फिर 60 बाद में और भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद फेज 2 को भी हम लोग इसी प्रकार से टेकअप करेंगे। तो इस इवेंट में खास करके मैंने कहा कि अपना जो स्टेक होल्डर्स है उन लोगों को, टूर ऑपरेटर्स जैसे स्टेक होल्डर हो गया, इसके बाद होम स्टे के लोग हो गया, ब्लॉगर्स लोग हो गया, आप लोग पूरा टूरिज्म का स्टेक होल्डर्स है।
तो इस कार्यक्रम में मैंने कहा कि सबसे पहले टूर ऑपरेटर्स और आप सबको जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इस कार्यक्रम में अभी मान लीजिए कि हमारा वेस्टर्न साइड में अभी आप लोग जो डेलीगेट्स वहाँ जाएंगे, तो वहाँ का जो लोकल टूर ऑपरेटर्स है, वहाँ का लोकल जो होम स्टेस है, उनका साथ में भी आपका इंटरेक्शन होगा और टाई अप आप लोग बिजनेस टाई अप भी B2B जो बिजनेस मॉडल होता है उसको भी आप लोग डेवलप कर पाएंगे। उसी प्रकार से सेंट्रल में भी होगा और ईस्टर्न साइड में भी होगा, तो आपस में भी आप लोगों का एक बॉन्डेज होगा, आपस में आपका एक बिजनेस डील भी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि बहुत सारा टूर ऑपरेटर्स अरुणाचल को आप लोग भी नहीं देखा होगा, हमें 100% श्योर है। तो इस कार्यक्रम का माध्यम से अरुणाचल का जो पहचान है, हमारा जो रिच कल्चर है, डाइवर्सिटी जो है, सबसे पहले टूर ऑपरेटर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस इवेंट से मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को ये गाइडेंस भी देना चाहेगा, अपना सजेशन, कि बाहर से टूरिस्ट हम लोग अरुणाचल प्रदेश में अभी धीरे धीरे कोविड का सिचुएशन जब कंट्रोल हो जाएगा तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब टूरिस्ट जब आएंगे तो वो लोग जब कुछ जगह देखने के लिए जाता है या कुछ हिस्टोरिकल प्लेस जाता है या अपना कल्चर के बारे में जब पूछते हैं, तो हमारा जो टूर गाइड जो होता है, ही शुड बी वेल इक्विप्ड विद नॉलेज। तो मेरा टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये सजेशन होगा कि जितने भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट बेस में जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर होता है या TIOs जो होता है, उनको अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में सब जो लोकल जो गाइड होता है उनको अच्छा तरह से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस तरह का जो इंसिडेंट है, हम लोग भी जब कहीं दूसरा जगह जब जाते हैं एज एन टूरिस्ट, तो हम लोग को भी फेस करने को मिलता है। तो जनरली हम लोग जब जाते हैं तो एक गाड़ी हायर करते हैं, वो गाड़ी हायर करने के बाद वो ड्राइवर ही हम लोगों का टूर गाइड हो जाता है, और वो ड्राइवर जो है कुछ कहानी बिल्कुल जो लिंक नहीं वाला कहानी भी उल्टा सीधा बोल के फिर वापस लेके आ जाता है। तो ये इस प्रकार का टूरिज्म हमारा प्रदेश में। नालो साहब, बहुत अच्छा ओकेजन है, बहुत अच्छा प्रपोजल है। आप देखो अपना प्रदेश, अभी पता चला कि आप भी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं घूमे हैं सर, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने शुरुआत किया सर। एक चीज़ है, टूरिज्म में और क्या क्या प्रपोजल आपने रखा है सर? क्योंकि काफ़ी कोरोना का वजह से आपने जैसे बताया, सच में सब लोग झेल रहे हैं सर। टूरिज्म में आपका अपना लोकल के हिसाब से तो ये अपना देखो अपना प्रदेश फर्स्ट इनिशिएटिव है हमारा चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर के द्वारा। उसका एक सोच था कि टूरिज्म में पेंडेमिक के कारण से टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना इफेक्ट पड़ा है कि हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म बंद हो गया और डोमेस्टिक टूरिज्म भी बंद हो गया। तो बीच में क्या होता है कि हम लोग सरकार का तरफ से चीफ मिनिस्टर ने सोचा कि प्लान बनाया कि हम क्यों ना हमारा लोकल टूरिज्म को एक्टिवेट करें। और उस पर क्या होता है कि लोकल टूरिज्म के एक्टिविटी होने के कारण जो है अपना देखो अपना प्रदेश का अंतर्गत अब टूर ऑपरेटर को काम मिलेगा और होम स्टे में काम आएगा और ब्लॉगर को काम आएगा और जितना भी टूरिस्ट इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है उसका एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये देखो अपना प्रदेश लोकल ये बनाया है। और एक है कि अरुणाचल इतना वास्ट है, इतना लार्ज स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत कम है। हमने पहले भी कहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि अरुणाचल का पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी पता नहीं है, उसको बॉम्बे या दिल्ली कहाँ है पूछने से पता होता है, लेकिन खुद को पता नहीं। तो अरुणाचल एक मेजर 26 ट्राइब है और मोर देन 100 सब ट्राइब है। एक तो दूसरा को जानना, टूरिज्म को एक्टिविटी को आगे बढ़ावा देने से नहीं होगा, खुद को आगे जानना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सरकार जो चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव से ये शुरू किया है कि सबसे पहले अपना अरुणाचल को जाने हैं और यहाँ का रीति रिवाज कैसे एक दूसरा को जान के अरुणाचल को आगे बढ़ाना है कि जब तक डिफरेंस रहेगा आगे नहीं बढ़ेगा। सर ईटानगर खास करके पूरा स्टेट का तो हम लोग भी शायद कंप्लीट नहीं घूमे, आप जैसे बता रहे हैं। कैपिटल कम्प्लेक्स में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, पापुमपारे में डिस्ट्रिक्ट में सुनने को मिला है 26 प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स एंड आउट ऑफ यूज़। तो आप उसको रिनोवेट नहीं कर रहे हैं सर, प्रोजेक्ट का ऊपर प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो कहाँ तक आपको नज़र आता है कि इससे फ़ायदा मिलेगा आपको? ये प्रोजेक्ट जहाँ तक आप पब्लिक डिलापिडेटेड या स्टॉपेज का बात कर रहे हैं, उसमें ऐसे होता है कि सेंट्रल जो स्पॉन्सर स्कीम जो है उसमें कभी कभार ऐसे हो जाता है कि प्रोग्राम जो डी लिंक हो जाता है, तो डी लिंक को हम कंटिन्यू करने के लिए हमारा प्रोसेस लगता है और जितना भी एसेट जो है यूटिलिटी फ्यूचर में आ सकता है उसको रिनोवेट करेगा और प्रोग्राम को आगे ले जाएगा। और जिस चीज़ को जो काम में नहीं आ रहा है 15-20 ईयर्स पहले शुरू किया था, जो अबंडन भी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ इन्वेस्ट करके बेकार चला जाएगा। और जो ज़रूरी होगा जैसे माने होटल बनाने का लायक है, गेस्ट हाउस बनाने का लायक है, उसको सरकार जो है प्रायोरिटी में लेके अभी भी बनाने जा रहे हैं क्योंकि एक साल जो है कोरोना के कारण से रुका हुआ था।
क्या कोई हमारा होटल को भी डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस में है क्या सर? नहीं, होटल को फिलहाल अभी ऐसे नहीं है, आने वाला समय में और करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे है कि हमारे इनिशिएटिव आगे करना पड़ेगा। नालो साहब, आप सिविल एविएशन मिनिस्टर भी है और गवर्नर साहब, आपका सरकार काफ़ी कंसंट्रेट कर रहा है एयरपोर्ट का ऊपर में, अभी क्या स्टेटस होगा सर? एयरपोर्ट तो हम लोग भरोसा करता है कि होपफुली हम अपना टारगेट समय को रनवे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ माना अधूरा हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट है 2022 15 अगस्त को हम हैंड ओवर करना है। अभी जो है आप भी जाके देखना चाहिए, और कभी कभार आप लोग मीडिया जो है आपको जाके भी देखना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस जितना काम चलना चाहिए अभी तो हमारा नवंबर से शुरू, नवंबर से लेके आज तक जितना रनवे का पीलिंग और जितना होना चाहिए था वो माना प्रोग्रेस माना 24/7 का काम चल रहा है डबल ट्रिपल शिफ्ट में। और उससे पहले हमारा एक तो ताकि लोकल इशू जो है शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, और अपना स्टेट का तरफ वेरी एरिया का जितना डेवलपमेंट है, रोड हो गया, बाउंड्री वॉल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सब आगे चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में है। सर सुनने में आया कि आप लोग टारगेट से पीछे चल रहा है, सही है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, टारगेट से पीछे नहीं चल। कोरोना का 1 साल हमको हो तो उसको तो मेरा टारगेट में नहीं लिया जा सकता है, काम डिले नहीं हुआ है। हमारा फुल स्विंग काम जो है नवंबर से शुरू किया, अभी नवंबर से लेकर आज तक आप खुद भी जाके देखिए काम का जितना अचीवमेंट है, जिस तरह से हमको प्रोग्रेस होना है, खास करके रन में वो तो हमारा आगे चल रहा है। लोगों का कहना है कि नाकापनालो ऑलमोस्ट हर 1-2 सप्ताह में विजिट कर रहा है, आप उनको कंसंट्रेट कर रहे हैं ना सर? ये तो होलोंगी जो एयरपोर्ट है अरुणाचल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और बोलने से ये प्रोजेक्ट जो है पूर्वोत्तर माने भूल चुका था, तो उसका तो 2013 में शुरू हुआ। जब से हमारा माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो सरकार संभाला है, तो उसका ये टारगेट था कि उसको टाइम में ख़त्म करना है, और ये थैंक्स जो है मोदी जी को भी देना चाहिए। उसके इनिशिएटिव से आज हमको एक तो मौका मिल रहा है कि उसको देखने का, तो मेरा तो जाना बनता है, क्योंकि एक सिविल एविएशन मिनिस्टर के होने के नाते अरुणाचल को इंटरेस्ट देखना सबसे मेरा प्रायोरिटी है कि, और मेरा सरकार का प्रायोरिटी होता है कि हम तो सप्ताह क्या दिल्ली जाने को मन करता है, लेकिन कुछ काम और रह जाता है, दिल्ली नहीं जा पाता है। सर आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हो सर, तो ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का जो APSC बस काउंटर है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। तो हमने जब पता लगाया तो वहाँ का ही स्टाफ्स का कहना था कि डिपार्टमेंट की तरफ से फंड नहीं आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल को लेकर। तो ये बात कितना हद तक सही है, अगर कुछ है तो आप किस तरीके से इनिशिएटिव लोगे सर? देखिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस का अरुणाचल का एक बहुत लंबा समय से है, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूटी समय में बनाया गया, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, डैमेज हो गया, उसको वन गो में तो नहीं कर सकता है, लेकिन फेस में वाज माने जहाँ गाड़ी मूवमेंट का और फ्लाई का कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ ज़रूरी है रिनोवेशन तो चल रहा है अभी, और जहाँ ज़रूरी है वो कर रहा है, और जिस हो सकता है कि अभी कुछ और रह गया होगा उसको भी आगे जाकर करेंगे। सर कैपिटल के दोनों पार्किंग लोड को आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं ना सर, स्टैंडर्ड क्वालिटी में बन रहा है कि नहीं? मॉनिटरिंग तो जहाँ तक कैपिटल का ये है कि वो हमारा जो है कि हमारे डिपार्टमेंट का अंदर में नहीं है सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसको जो है अर्बन डिपार्टमेंट जो देख रहा है। तो हमारा ये क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से सेंट्रल फंडिंग है, और जहाँ तक ये है तो चीज़ तो देख रहा है, लेकिन जितना कंट्रोल जो है उसका अर्बन डिपार्टमेंट का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेसिकली कोविड के चलते सबसे बड़ा झटका तो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री को मिला है। तो इट इज़ एन इनिशिएटिव कि इस कार्यक्रम के ज़रिए से अपना टूरिज्म के जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने का ये एक गवर्नमेंट की ओर से एक तो कोशिश किया है। दूसरा इसका ये एक मैसेज इस माध्यम से ये मैसेज देना चाहेगा कि अरुणाचल प्रदेश बीइंग द बिगेस्ट स्टेट, अपना अरुणाचल प्रदेश के लोग भी सब जगह में विजिट हो नहीं पा रहा है। तो इस कार्यक्रम के मुताबिक एक अवेयरनेस लोगों को कि अपना प्रदेश इतना सुंदर है तो अपना प्रदेश भी देखना ज़रूरी है। सर रोड का तो अल्टीमेटम आपने दिया, जैसे ईटानगर का दिया, मेरा अभी ताली का आपका है, तो ये जानना चाहूँगी काफ़ी जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से सर कंप्लेन रोड को ही लेके रहता है कनेक्टिविटी, तो आप अभी कुछ चैलेंज लोगे कि अरुणाचल प्रदेश का इंटीरियर में कब तक हाईवे या प्रॉपर रोड मिलेगा सर? देखिए ये इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे में जो आया था तो जो थीम था चूज़ टू चैलेंज हमें बड़ा इम्प्रेस हो गया। तो मैंने कहा कि अरुणाचल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो कनेक्टिविटी को लेके है। तो जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर ये पैकेज है जो ब्लैक टॉपिंग वाला रोड को मैंने चैलेंज लिया था वो काम भी पूरा ख़त्म हो गया। तो इस साल मैंने कहा कि वाई नॉट मेयो विजयनगर रोड जो सबसे पुराना रोड है सिंस यूटी टाइम से ही चल के आ रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी अभी तक हम लोग दे नहीं पाया। तो इस चैलेंज को हमने लिया हुआ है। और दूसरा जो चैलेंज हमने रोड सेक्टर में लिया है ताली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ भी बहुत सालों से रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है मगर पहुँच नहीं पाया है। तो इस दोनों क्षेत्र में हम इस साल हम जैसे भी कनेक्टिविटी पहुँचाएंगे।
सर एक काफ़ी दिनों से एक मुद्दा चल के आ रहा है, चुनामेन साहब को भी हम लोगों ने पूछा था, होम मिनिस्टर को भी पूछा था, हमारा अरुणाचल से 2 आदमी किडनैप हुआ था, स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस देखिए, क्योंकि वो लोग आसाम से बिलोंग करते हैं तो आसाम गवर्नमेंट ही वहाँ पे टैकल कर रहा है, तो आसाम गवर्नमेंट ही उसको ऊपर में आप लोगों को डिटेली बता पाएंगे। वैसे इस मैटर को लेके हमारा अभी तक डीजीपी से अभी मेरा आज मीटिंग है उनके साथ में, तो ब्रीफिंग आज वो देंगे, तो इसको ऊपर में बाद में आपको मैं शायद कल तक मैं अपडेट दे पाऊँगा। सर आफ्टर 1.5 ईयर एसएसबी का एलडीसी का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है, काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी लोग जो एक्सपीरियंस वो अप्रिशिएट कर रहे थे। सर क्वेश्चन ये रहेगा रिगार्डिंग यूडीसी का भी घोटाला हुआ था, जो स्कैम हुआ था, तो यूडीसी के भी जो एक्सपीरियंस उनका भी यही सवाल है कि गवर्नमेंट और एसएसबी यूडीसी के एग्जामिनेशन को रिकंडक्शन कराएगी कि नहीं, और कब अगर होगा तो कब तक होगा सर? देखिए, ये एलडीसी वाला मैटर तो ऑलरेडी हम लोग ने री एग्ज़ाम कंडक्ट भी करना शुरू शायद कर दिया है और शायद हो भी गया है। और जहाँ तक यूडीसी का जो मैटर है, मैं एक बार डिपार्टमेंट के साथ में बैठ के इसका निटी-ग्रिटीज़ क्या है उसको हमको एग्जामिन करना होगा। सर आपने चैलेंज अभी जैसे कहा, ईटानगर का रोड का आपने चैलेंज लिया था, ख़त्म हो गया। ईटानगर में सर 9 ब्रिजेस है, अलग अलग सेक्टर को कनेक्टिविटी करता है, रोड है, जूली रोड है, वो भी ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। काफ़ी सड़क है सर, आपको भी मालूम होगा। बिल्कुल। सारा रोड का प्रोजेक्ट आपने अबंडन कर दिया, ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ओनली हाईवे में तो लोग नहीं चलते हैं, सबवे में भी चलते नहीं, हैं। वो एबंडेंट किया हुआ नहीं है सर सारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया असेंबली से, आप ऐसे खबर में? नहीं हो बिल्कुल बात पूरा गलत है, क्योंकि ईटानगर नाहरलगुन का जो रोड सेक्टर है, हाईवे तो प्रायोरिटी है ये, इसके अलावा दूसरा प्रायोरिटी जो है हमारा पूरा सेक्टोरियल रोड्स। तो मैंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिया है कि बाय 2024 और ईटानगर और नाहरलगुन का जितना भी जो सेक्टोरियल रोड्स है उसको पूरा हम लोग बना के दे देंगे, और फेज वाइज करके हम लोग फंडिंग भी रखा हुआ है। तो इस साल अभी लास्ट टाइम का भी टेंडर हो चुका है, बहुत सारा सेक्टोरियल रोड्स में अभी काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि ये ईटानगर नाहरलगुन जो ट्विन कैपिटल है वो सब ट्राइब्स का है, सब ट्राइब्स का लोग यहाँ बसते हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा रोड नेटवर्क को ठीक करना ये गवर्नमेंट का हम लोग का पूरा प्रायोरिटी है। तो आने वाला दिनों में देखिए आप रोड सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। सर सेक्टर रोड का जैसे आपने कहा सर, इसमें जो क्वालिटी का बहुत सर क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी सीसी पेमेंट जो किया है सर, वो इसका क्वालिटी इतना ख़राब है कि एक हफ्ता के बाद, एक महीना के बाद धूल निकलना शुरू करता है। तो सर आप कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, क्वालिटी चेक करना ये डिपार्टमेंट का अपना उस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मेरा ओर से जितने भी आज यहाँ पे मीडिया पर्सन्स आप लोग जो मौजूद है, क्योंकि मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपके ज़रिए से हम लोगों का ग्राउंड में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप लोगों का माध्यम से ही पता चलता है। यू आर द आइज एंड ईयर्स ऑफ द पीपल एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो आप लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि जहाँ जहाँ क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो उसका रिपोर्टिंग आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और आजकल तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सब लोगों के पास में ट्विटर हैंडल है, तो हमारा को भी सीएमओ को भी उसमें हैंडल में हमको टैग कर दीजिए, और हमको पर्सनली भी उसमें टैग करके आप लोग सोशल मीडिया में डाल दीजिए, ताकि मैं डिपार्टमेंट के साथ में इसको केस टू केस बेसिस में हम फॉलोअप ज़रूर करेंगे। सर काफ़ी लोगों का एक रिक्वेस्ट है और प्रार्थना भी कर रहे हैं सर, रिक्वेस्ट के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और हाईवे डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी को, कि अंडरपास बन रहा है, काफ़ी ज़ोर शोर से बन रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, बरसात हुआ तो एक्सटेंशन भी हो सकता है, क्योंकि मौसम ख़राब होगा तो काम नहीं होगा। एट द सेम टाइम नीति विहार का जो बाईपास है और आपका घर का सामने से जो बाईपास जाता है, एटलीस्ट काफ़ी जगह गड्ढा हो गया सर, गाड़ी ऑलमोस्ट शिव मंदिर जो आपके घर के सामने हुआ है, ऑलमोस्ट गाड़ी एक्सीडेंट होने शुरू हो गया, तो उसको आप रिपेयरिंग कब करेंगे? नाहरलगुन निर्जुली बंदरदुआ रोड का भी ऑलमोस्ट हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, टेंडर पास हो गया, लेकिन थोड़ा सा तो समय लगेगा, तो मी एट द सेम टाइम पीपल वांट सम रिलैक्स। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। अभी देखिए, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जहाँ जहाँ आपने जो सेक्टर्स जो बताया हुआ है, वहाँ में लगभग सभी कामों का टेंडर अभी हो चुका है। तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक रात या एक दिन में बनने वाला काम तो नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा पेशेंस होना भी ज़रूरी है। तो मैं डिपार्टमेंट को और भी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस काम को फास्ट ट्रैक में डालने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी।